हे गाइस वेलकम बैक टू टी सी एस बाबा। तो इन द लास्ट वीडियो तो मैंने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 30। ठीक है, दैट वाज पार्ट 1। अभी क्वेश्चन मीन्स पार्ट 2 में आई एम कवरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 60। तो आई यू गाइस हैव रिटन कि अराउंड क्यों क्यों है तो आउट ऑफ 30 23 24 হুইচ ইজ এ ভেরি ভেরি গুড নাম্বার যারা স্কোর করেছো। অ্যান্ড অনেকে তো এন্টায়ার কোয়েশ্চেন পেপারই অ্যানালাইজ করে এসেছো। অ্যান্ড দোজ হু আর গেটিং মোর দেন 105 110 ওয়েল আর দেরি না করে স্টার্ট ইউর প্রিপারেশন। ডোন্ট ওয়েট ফর আনসার কি অফিসিয়াল আনসার কি, জাস্ট স্টার্ট ইউর প্রিপারেশন। আর বাকি অন্যদের জন্য বলছি, যদি তোমার ইফ ইউ আর ফ্রম জেনারেল ক্যাটেগরি আর তোমার স্কোর যদি 100-এর নিচে হয়, वेल सॉरी टू से बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस बार तो क्लियर होना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ठीक है। बट वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, दैट इज़ माई सजेशन। এখন लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या था? सर थॉमस मुनरो वॉज एसोसिएटेड which of the land revenue system? आंसर इज राउतवारी ए। वंदे मातरम ন্যাশনাল সং ওয়াজ ফার্স্ট সাং ইন হুইচ সেশন অফ আইএনসি? আমি আগেও ডিসকাস করেছি, আগেও আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি যে ভাই এই সেশনস অফ আইএনসি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ইভেন তোমাকে আমি এই ওয়েবসাইটের মধ্যে সি কাহা था ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, হ্যাঁ আইএনসি সেশনস প্রেসিডেন্টস ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টস যা ছিল এটার লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি আমি। এই লিঙ্কের মধ্যেও তুমি যদি যাও দেন ইউ উইল বি গেটিং কি ন্যাশনাল সং বন্দে মাতরম সং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। অ্যান্ড দিস ওয়াজ পার্ট অফ যে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স যেগুলো বলেছিলাম সেগুলোর পার্ট এটা। ठीक है, अरे कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। तो आंसर इज़ लाहौर, सॉरी आंसर इज़ नॉट लाहौर, आंसर इज़ कोलकाता। 1896 कोलकाता इज़ द आंसर। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिरोजियन? सो डिरोजियन इज़ अ प्रोफेसर जिनको फॉलो करते करते मेनी पीपल फॉलोड हिज फुटस्टेप। राधाकांत देव वाज नॉट ए डिरोजियन, तो आंसर इज़ राधाकांत देव। राधाकांत शिकदार was a Derosian. ठीक है। Which social reformer of Maharashtra was popularly known as Lokahitawadi? Answer is Gopal Hari Deshmukh. Gopal Hari Deshmukh. To protest against British exploitation of indigo farmer, Gandhiji started চম্পারণ সত্যাগ্রহ। আমি আগেও বলেছি, ডিসকাশন করেছি যে এই গান্ধীজি রিলেটেড whatever movement he was associated with is very important। এটাও অলরেডি ডিসকাস করা আছে আমার এখানে ইম্পর্টেন্ট টপিক্সের মধ্যে। ইম্পর্টেন্ট টপিক্সের ভিডিওটাও যদি তুমি পুরো মানে আগে গিয়ে দেখো, ইউ উইল বি ফাইন্ডিং দিস। নেক্সট, বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্যাক্টস ডিড আইএনসি অ্যান্ড মুসলিম লীগ কেম টুগেদার? আনসার ইজ লখনৌ প্যাক্ট। অ্যাগেইন দিস রেফার্স টু তোমার ইম্পর্টেন্ট সেশনস। তো ইম্পর্টেন্ট সেশনসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট যখন দেখবে, you will be finding कि भाई in 1916 these things happened. Next, who was the viceroy of India during Quit India movement? Answer is Lord Linlithgow। আমি এই জিনিসটাও আমি আগে বলেছিলাম ইম্পর্টেন্ট টপিকের মধ্যে। পয়েন্ট নাম্বার 5 দেখে নিও যে অল দ্য ভাইসরয়েস অ্যান্ড গভর্নর জেনারেলস ওদের সাথে রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট যা আছে ভাই উসকো দেখলে না। আর এই জিনিসটার লিঙ্কও আমি দিয়ে দিয়েছিলাম, যদি রিভাইজ করে থাকো অবভিয়াসলি আনসারটা ঠিকভাবেই দিয়েছো, और एल्स क्या ही बोलूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह? आंसर इज अरुणा असफ আলী। নাও এটার লিঙ্ক এটার জন্য আমি বলেছিলাম দিস ইজ নট পয়েন্ট নাম্বার 5 আই থিঙ্ক, বাট দিস ইজ রিলেটেড টু তোমাকে আমি বলেছিলাম এই উইমেন ইন ন্যাশনাল মুভমেন্ট। পয়েন্ট নাম্বার 11 হবে উইমেন ইন ন্যাশনাল মুভমেন্ট। আর এই দুটো লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছিলাম, এই দুটো লিঙ্ক যদি ইফ ইউ হ্যাড কাভার্ড you would have answered this easily। এই উইমেন ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের রিগার্ডিং একটা না একটা কোয়েশ্চেন আসারই ছিল। আর যাদের নাম আছে এনিওয়েশন সরোজিনী নাইডু, মৃদুলা সারাভাই, অরুণা আসফ আলী, তো কারো না কারোর রিগার্ডিং তো কোয়েশ্চেন আসতোই। তো এসে গেছে একজনের রিগার্ডিং, যদি পড়ে যেতে একটু দেখে যেতে ইউ কুড হ্যাভ ইজিলি আনসার্ড। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका क्या है? इसका आंसर सी है। 3 पार्टीशन ऑफ बंगाल, 2 इज जालियानवाला बाग,
then is demand for Purna Swaraj, then is Dandi March. Next আমি আর একবারও মানে আগেও আমি বলেছি অলরেডি ডিসকাসড কি সুভাষচন্দ্র বোস পয়েন্ট নাম্বার 1-এ আমি রেখেছিলাম, 1 নম্বরে আমি রেখেছিলাম इंडियन हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ भी हो इज़ इम्पॉर्टेंट. अनाउंस इज फेमस दिल्ली चलो कहाँ से किया था, सिंगापुर से किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द reign of which माणिक्य किंग वाज कुंजवन पैलेस बिल्ड. कुंजवन पैलेस कब बिल्ड हुआ था, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के टाइम. ये 2 जगह पे आई हैव मैंशनड. एक तो पॉइंट नंबर 1 2 मतलब किंग्स ऑफ त्रिपुरा दैट यू शुड लर्न. सेकेंड इज दिस इज़ पार्ट ऑफ माई नोट्स, वो त्रिपुरा वाला नोट्स जो है मेरा उस पर भी ये मैंशनड है. ठीक है. इट्स वेरी सिंपली आई हैव मेड कुंजवन पैलेस किसने बनाया था, दिस इज ऑल्सो मैंशनड. तो वो अगर देख लेते तो यू वेरी इजीली यू वुड हैव आंसर्ड. Now, which of the following is worshipped as god of paddy by the tribes of Tripura? Answer is Mailuma. थोड़ा tricky हो सकता है but this is the answer. Name a marriage custom prevalent among the tribes of Tripura. Answer is Kaizak Nani. ठीक है. पोस्ट ऑफिस फर्स्ट टाइम ओपन कब हुआ था, 1875 को, 1 अक्टूबर 1875 अगरतला में. माणिक्य किंग ड्यूरिंग ग्रेट रिवल्ट ऑफ 1857. तो यू जस्ट हैड टू नो कि किंग वाइज কোন মহারাজা কোন সময় কোন ডিউরেশনের মধ্যে কোন মহারাজা ছিল. ইফ ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্रोनोलॉजी इन योर नोट्स यू कैन इजीली आंसर कि 1857 में कौन था. तो आंसर इज ईशान चंद्र माणिक्य. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज ए क्या है, इट्स ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर. दिस इज अंडर आर्टिकल 61. नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सिस्टम. भाई इससे मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या ही आ सकता है, पार्ट 9. नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर ए पीरियड ऑफ. दिस इज एक्चुअली बेसिकली बेस्ड ऑन इमरजेंसी के ड्यूरिंग द टेन्योर द ड्यूरेशन ऑफ state legislative assembly can be extended. This falls under article 172(1). The answer is 1 year. Proclamation of emergency agar ho, it is in operation, it can be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after proclamation has ceased to operate. So basically answer is 1 year. नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कन्स्टिट्यूशन. আমি আর একটা জিনিসও বলেছিলাম, আই হ্যাড মেনশনড আম্বেদকর অলসো. তোমার हाँ बी आर अम्बेडकर 3 नंबर पॉइंटे देखो, बी आर अम्बेडकर रिलेटेड कुछ भी हो आई हैड मेंशनड कि क्वेश्चन तो आएगा भाई बी आर अम्बेडकर के रिलेटेड, आ भी गया. सो आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ठीक है. सो दैट इज द आंसर. महात्मा गांधी गॉट इज इंस्पिरेशन फ्रॉम, किससे मिला था फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दिस इज डेविड थोरो. तो हेनरी डेविड थोरो ही रोट एन ऐसे इन 1849 सिविल डिसोबीडियंस. उसके ऊपर एक्सप्लेन्स हिज रिफ्यूजल टू पे ए स्टेट पोल टैक्स विच वॉज मॉरली जस्टिफाइड बट टेक्निकली इलीगल. तो ही गॉट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम हेनरी डेविड थोरो. ठीक है. तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि आई मेंशन महात्मा गांधी ऑल्सो, कि उसके रिलेटेड वॉट एवर मूवमेंट वेर देयर, वॉट एवर थिंग्स वेर देयर, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट विथ ए किसके साथ. आंसर इज सिंपल मेजोरिटी. आर्टिकल 169. आंसर इज सिंपल मेजोरिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर above India in terms of nominal GDP as per IMF data year 2020. इस पे थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन पे. द आंसर इज मे बी इफ़ यू हैव गिवन ए द आंसर इज करेक्ट. इफ़ यू हैव गिवन सी ऑल्सो तो भी आंसर राइट है. इसका रीज़न मैं बताता हूँ. द आंसर इज
मतलब अगर रैंकिंग देखा जाए, नंबर 1 वाज यूएस, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 यूके। ठीक है, तो अबव इंडिया कौन कौन है? यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, बट यूके भी है बिकॉज इंडिया इज रैंक 6। इस पे है यूएस, चाइना, यूके, जापान। यूएस, चाइना, यूके, जापान। अब क्वेश्चन डिड नॉट आस्क इन सच ए वे कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंडिया के ऊपर कौन है, ये क्वेश्चन नहीं है। द क्वेश्चन इज जस्ट कि व्हिच कंट्रीज आर अबव इंडिया इन दिस। अब द आंसर शुड बी ए और सी, दोनों ही करेक्ट है। नाउ इफ एनी ऑफ यू हैव गिवन सी अगर ऑप्शन दिया है, आई वुड सजेस्ट कि भाई तुम टीपीएससी में यू कैन फाइल, वहाँ पे यू कैन रेज कि ये आफ्टर वो आंसर की दे रिलीज, आफ्टर दे रिलीज द आंसर की यू कैन फाइल इट कि भाई ये गलत है, मतलब दोनों ही आंसर सही है। तो इफ़ आई हैव मार्क्ड सी तो भी मुझे आंसर दो, अब तो भी मुझे मार्क दो, डिमांड करो ऐसे। फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्ड इन इंडिया फॉर 2020-21, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट्स 6.71। ठीक है, लिंक दिया हुआ है। इन विच 5 ईयर प्लान, टीपीएससी का पता नहीं, 5 ईयर प्लान से तो बहुत लगा हुआ है। द आंसर इज क्या है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस वॉज देयर इन 4th 5 ईयर प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट कौन सा नहीं है? द रेवेन्यू रिसीट इज समथिंग, उस हिसाब से देख सकते हो, विच डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। टैक्स से पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट से भी पैसे मिल रहे हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन आउट लोन्स टू समवन एंड रिकवरी ऑफ दैट लोन, मतलब रीपेमेंट ऑफ द लोन इज हैपनिंग, तो पैसा घुस रहा है टू द बैलेंस शीट। बट इन दिस फॉरेन ग्रांट somebody has given you money and they may charge an interest on that, so money is going out, so it's not a receipt. ठीक है, तो foreign grant is the answer, this is not a revenue receipt. Next question क्या है? which of the following is a combination of direct taxes, मतलब दोनों ही direct tax है। तो wealth tax, income tax, service tax is indirect, service tax is indirect, excise duty is again indirect, तो फिर वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये दोनों ही डायरेक्ट टैक्सेस है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर? बहुत लोगों ने अगर गलती से गोल्ड स्टैंडर्ड दे दिया तो फिर ये गलत है। द आंसर इज पेपर स्टैंडर्ड। वो भी थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज द करेक्ट आंसर इज इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये है कि मनी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और अदर प्रेशियस मेटल। Thus, when paper money is inconvertible, the issuing authority, मतलब RBI is not responsible to convert the paper notes into gold or gold coins. मतलब तुम 100 रुपी दे के you cannot ask RBI कि भाई मुझे इसके बदले में 100 रुपीज़ का गोल्ड दे दो। No, you cannot ask for that. The answer is paper standard और inconvertible paper currency standard. तो A is the answer. Which article of Indian Constitution has the provision for financial emergency? इससे easy अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मतलब क्या ही बताऊँ मैं। आंसर डी, आर्टिकल 360, और इसको तो गलत करना ही मत, अब क्या ही बताओ। नेक्स्ट, which of the following parliamentary committee consist of only members of Lok Sabha? Answer is estimates committee. Next, which section of IPC was struck down by Supreme Court of India to decriminalize homosexuality? Answer is C, section 377. So that's it till 31 to 60. So you have in part 1 to 30 का you have got the answers. वहाँ पे देख लो कितना मार्क्स मिल रहा है। From 31 to 60 again you have got the answers. अब यहाँ पे भी देख लो कितना हो रहा है, ऐड ऑन करते रहो। In the next video I will be giving उसके बाद 61 to 90, then वो चलता रहेगा 200 तक पूरा ही कवर करूँगा, मुझे 1-2 दिन दे दो। चलो, दैट्स इट। आई थिंक इफ़ यू लाइक द वीडियो फिर सब्सक्राइब करो एंड राइट डाउन इन द कमेंट हाउ मच यू हैव गॉट आउट ऑफ दिस 30 एंड राइट नाउ इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर यू कैन गो टू tcsbaba.com ऑल्सो, वहाँ पे भी
you will be getting the links to my Telegram channel and also some other information that I have mentioned here. ठीक है, so that's it guys.